Good afternoon to each and every one of you. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope all of you are doing fantastically well. Yes. Good afternoon to each and every one of you. I hope all of you are doing well. Good afternoon. Good afternoon, Muskan, Kazi, Prachi, Panchal, Sanket, Vinod Bhatt, Nal, Archie, Madhwani, Ansh Babbar, Ronak Yadav, Prachi, Panchal, प्रियंका ठांकी, क्षितिज, कुमार, जीनल, शिवानी, आशीष, ग्रेट। चलिए शुरू किया जाए अपना मुद्दा। हम लोगों को करना है हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन और अपना एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, और उसी के चलते हम अपनी क्विज यहां पर स्टार्ट करेंगे। We'll start with our quiz. तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, who are considered related persons under GST? Great. Good afternoon, everyone. Who are considered related persons under GST? Come on. Who are considered related persons under GST? कौन होंगे ये? Option B, persons who are officers or directors of one another's business among other criteria. Absolutely correct. ठीक है, this is absolutely correct. Next question ये रहा आपके सामने. What does distinct persons refer to in GST? Persons from distinct social backgrounds, establishments of a business that have separate registrations, distinct legal entities under different business names, unrelated individuals in a business transaction. Come on. Absolutely correct. Establishments of a business that have separate registrations. Very nice. Next question. Which of the following is not considered a supply under GST? Services provided by an employee to an employer not in the course of employment, transfer of goods between two units of a legal entity and a single registration, gift by employer to employee exceeding 50,000 rupees, transfer of goods between distinct persons without consideration. Which of the following is not considered a supply? इनमें से कौन सी चीज सप्लाई नहीं है? इनमें से कौन सी चीज सप्लाई नहीं है? आप लोग कह रहे हो ए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉई टू एन एम्प्लॉयर नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ अ लीगल एंटिटी अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन, ये नहीं है ना, ये तो सप्लाई नहीं होगा ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉई टू एन एम्प्लॉयर नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो सप्लाई हो जाएगा, ये सप्लाई हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ अ लीगल एंटिटी अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन के बीच में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ये सप्लाई नहीं होगा। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, ये भी सप्लाई हो जाएगा। एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस विदाउट कंसिडरेशन, ये भी सप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ए है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप सब लोग गलत बोल रहे थे। ठीक है, सभी लोग गलत बोल रहे थे यहां पर। ठीक है, नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता तब फिर वो सप्लाई के स्कोप से बाहर होता। अभी यहां पर एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप के अलावा दे रहा है। ठीक। Under which condition are establishments considered distinct persons for GST registration? When they operate in the same state under the same registration, when they have separate registrations, whether within the same state or different states, only when they are in different states and have different owners, only when they do not make taxable supplies. Only when they do not make taxable supplies. बताओ, when they have separate registrations, whether within the same state or different state. Absolutely, ये तो सब लोगों का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, what determines whether a transfer of goods without consideration between branches of the same company in different states is considered a supply? बताएं, सब लोग इसका उत्तर दें। What determines whether a transfer of goods without consideration between branches of the same company in different states is considered a supply? The type of goods being transferred, whether the branches are in metropolitan cities, the presence of separate GST registrations for the branches, या the value of the goods being transferred. तो ये तो मेरे ख्याल से सभी लोग सही जवाब दे रहे होंगे इसका, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द प्रेजेंस ऑफ सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस फॉर द ब्रांचेस। अगर अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशंस होंगे तो उनके बीच में जो भी ट्रांसफर होगा, इवन इफ इट इज हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स फ्री जिम मेंबरशिप
worth 40,000 rupees annually to all employees under GST, how is this benefit treated? फ्री जिम मेंबरशिप्स मिल रही हैं, तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? फटाफट से बताएंगे सभी लोग, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? C, as a supply if the total benefits exceed 50,000 rupees per employee. Okay, as a taxable supply since it is a perquisite, ये तो नहीं होगा. Not a supply, it is part of employment contract, यही लग रहा है. ठीक है, as a supply if the total benefits exceed 50,000 rupees per employee, ये भी नहीं होगा. Not a supply because there is a non-monetary benefit. ठीक है, तो the correct answer is B. It is not a supply as it is part of employment contract. ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला होता है, तो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर फ्री में जो भी चीजें वो देते हैं, तो ये गिफ्ट नहीं है. फ्री मेंबरशिप्स दे रहे हैं सभी इंप्लॉइज को, तो सभी इंप्लॉइज को दे रहे हैं, मतलब ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में आ रहा है. और अगर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में आ रहा है तो फिर इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा. फ्री मेंबरशिप अगर मिल रही है आपको जिम की, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई अलग से गिफ्ट दे रहा है, तब आप वहां पर करोगे कि 50,000 से कम या 50,000 से ऊपर. यहां पर अगर आपको एम्प्लॉयर 1 लाख रुपए की भी जिम मेंबरशिप खरीद कर दे देगा, because the employer is providing to all the employees, सभी employees को प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब वो कंपनी की पॉलिसी है. और अगर वो कंपनी की पॉलिसी है तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में आ गया, और अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में आ गया तो फिर इसको जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा जाएगा. दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ सप्लाई. ठीक है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ सप्लाई. प्रियंका कह रही है ओह गॉट इट नाउ, ग्रेट ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कर्नाटका सेंड्स फ्री सैंपल्स टू इट्स सेल्स ऑफिस इन तेलंगाना, बोथ हैविंग सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस. हाउ इज दिस ट्रांजैक्शन ट्रीटेड अंडर जीएसटी? ये तो खैर बहुत ही सिंपल हो गया. दिस तो आई थिंक इज वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया. ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया है दोस्त, है ना? As a supply because they are considered distinct persons. Absolutely correct. Option A is your. ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर आ गया है. Just give me 1 minute please. Please just give me 1 minute. एक सेकंड रुकना आप लोग प्लीज यार. हाँ, तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है. हाँ, तो ये वाला हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मल्टीनेशनल कंपनी ट्रांसफर्स अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फ्रॉम इट्स दिल्ली ऑफिस टू इट्स बेंगलुरु ऑफिस, बोथ रजिस्टर्ड सेपरेटली. What GST implications does this internal transfer have? It's a supply given the distinct registration of each office. Not a supply as it involves the transfer of intangible assets. As a supply but exempt from GST if used for educational purposes. Yeah, not a supply because no sale is intended. बताइए. A, आप लोग कह रहे हो A. It is a supply given the distinct registrations in office. Perfect. Perfect. If a company provides an interest-free loan to an employee as part of its employment benefits, how is this treated under GST? So if a company provides an interest-free loan to an employee as part of its employment benefits, how is this treated under GST? As a supply because it's a financial service, not a supply as it is a perquisite in terms of employment. A supply if the loan amount exceeds a certain threshold, and not a supply because it is part of an employment contract. बताओ. Absolutely right. सब लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है. This is not a supply as it is a perquisite in terms of employment. Very nice. An architecture firm in Kerala registered under GST provides free design consultancy to its newly established branch in Tamil Nadu, which is also registered under GST. How does GST law treat this inter-branch service? As a supply because services are provided between distinct persons and with separate registrations. Not a supply as a consultancy is provided free of charge. As a supply only if the consultancy leads to a profitable project for the Tamil Nadu branch. Not a supply because both branches are a part of the same company. Obviously, option A is the correct answer. ठीक है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ये डिस्टिंक्ट पर्संस हो गए, सेपरेट रजिस्ट्रेशंस, तो इनको सप्लाई माना जाएगा. एंड इसी के साथ हम लोगों का ये आज का रिवीजन
वाला जो सभा है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, रिवीजन क्विज वाली सभा हम लोगों के यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और अब हम लोग चलेंगे अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से हम लोग अपना एम रिवाइज करेंगे, और हमारा एम है हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। ठीक, देखो जीएसटी में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने सेक्शन 7 पढ़ लिया, हम लोगों ने सेक्शन 7 पढ़ा सप्लाई। अब सप्लाई के अंदर हमारे पास 4 सबसेक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 4 सबसेक्शंस हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 सबसेक्शंस हैं, 1, 1A, 2, 3। ठीक है, 1, 1A, 2 और 3। यहां पर हम लोग बात करेंगे सप्लाई इंक्लूड्स के बारे में। सप्लाई इंक्लूड्स, और यहां पर आपके पास आएगा A, AA, B और C। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी आपके पास। ए में हम लोगों ने कहा ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। तो for a consideration in the course or furtherance of business यहां पर आ रहा था। तो हम लोगों ने कहा एक चीज ऐसी है जिसमें अगर बिजनेस वाला कंपोनेंट आप हटा भी दो तब भी उसको सप्लाई मान लिया जाता है, तो वो यहां पर आता है, और वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अगर कंसिडरेशन है तो बिजनेस एस्पेक्ट चाहे हो चाहे ना हो, इसको आप सप्लाई मानते हो। फिर एक चीज है जहां पर अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, और ये है आपकी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, इनमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अब एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 हमारे पास 4 है, 4 एक्टिविटीज है स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हो जाता है आपका परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स जिन पर आप आईटीसी ले चुके हो। ये हो जाता है ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्संस एंड डिस्टिंक्ट पर्संस। ठीक है, मतलब दो रिलेटेड पर्संस के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होगा, इवन इफ इट इज हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन, तो इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। और अगर दो डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो इवन इफ इट इज हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर यहां पर हम लोगों ने बात की प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, कि अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को कुछ सामान भेजता है विदाउट कंसिडरेशन तो इसको सप्लाई मान लिया जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि एजेंट शुड हैव इशूड इनवॉइस इन हिज ओन नेम। मतलब एजेंट जो है वो अपने नाम पर बिल रेज करेगा, तभी प्रिंसिपल टू एजेंट वाला जो ट्रांसफर होगा, इवन इफ इट इज हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन, तो इसको वो माना जाएगा, इसको सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल को कोई सामान भेजता है एजेंट के बिहाफ पर, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर खरीद कर, तो इसको इवन इफ इट इज हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, बशर्ते एजेंट ने बिल पर अपना नाम लिखवाया है। और यहां पर था एक बार फिर से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, लेकिन यहां वाला जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज था वो कहता था कि या तो रिलेटेड पर्सन से हो या तो डिस्टिंक्ट पर्सन से हो, प्लस साथ ही में बिजनेस पर्पस भी हो। अगर ये दोनों चीजें हैं तब तो सप्लाई होगा, अदरवाइज द थिंग विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, अदरवाइज इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। ये वाला चार्ट आप लोग यहां पर देख सकते हो, सारी चीजें हम लोगों ने इसमें कवर की हुई है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कौन कौन सी चीजें सप्लाई हैं। सप्लाई इंक्लूड्स वाली काफी सारी चीजें आ गई हैं, सप्लाई इंक्लूड्स वाली काफी सारी चीजें आ गई हैं अभी, लेकिन इसमें एक क्लॉज ए बचा हुआ है। ठीक है, क्लॉज ए को हम लोग मे बी आज नहीं तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे, राइट, क्योंकि ये जो है ये लिंक्ड है सबसेक्शन 1A से। सबसेक्शन 1A का डिस्कशन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो अगर हम लोग वहां तक पहुंच गए तब तो क्लॉज ए हम वहीं पर डाल देंगे, अगर हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए तो फिर हम लोग क्लॉज ए कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम नहीं पहुंच पाए तो क्लॉज ए हम लोग फिर कल डिस्कस करेंगे। अब मेरी बात जरा आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसेक्शन 1A बताता है कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। ठीक है, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी, और ये मेंशन्ड है शेड्यूल 2 में। ये मेंशन है शेड्यूल 2 में, एकदम सिंपल।
देखो जो शेड्यूल है वो भी एकदम सीक्वेंशियली चल रहे हैं। यहां पर आपने पढ़ा शेड्यूल 1, उसके बाद अगले सबसेक्शन में आप आओगे, यहां पर आप पढ़ोगे शेड्यूल 2, फिर अगले सबसेक्शन में आप आओगे, यहां पर आप पढ़ोगे शेड्यूल 3। ठीक है, तो आज हम लोगों को शेड्यूल 2 पढ़ना स्टार्ट करना है। और शेड्यूल 2 में मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, 99% ऑफ द केसेस में, 99% ऑफ द केसेस में आपका अगर मन साफ है और आप बहुत ज्यादा इधर उधर का दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या इसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। राइट, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो जाहिर सी बात है आप उसकी सर्विस के लिए जा रहे हो, आप खाने के लिए नहीं जा रहे हो। ठीक है, आप रेस्टोरेंट की सर्विस के लिए जा रहे हो। द प्राइमरी एक्टिविटी इज व्हाट? प्राइमरी एक्टिविटी इज सर्विस। ठीक है, आपको खाना मिल रहा है तो खाना अगर नहीं देगा तो सिर्फ सर्विस क्या देगा? ऐसा थोड़ी होगा कि वो आप अपना खाना लेकर जाओगे और वो आपको खिलाएगा हाथ से अपने। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वहां रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली दिस इज अ सर्विस व्हिच इज लिंक्ड टू प्रोविजन ऑफ सम गुड्स एज वेल। राइट, जैसे हम लोग यहां पर पढ़ा रहे हैं तो आप यहां पर प्राइमरीली तो सर्विस के लिए आए हो ना, बुक्स आपको मिल रही हैं, वो एक एंसिलरी चीज हो गई कि वो आपको एक एडिशनल चीज मिल गई, वो ठीक है, लेकिन प्राइमरीली तो आप यहां पर मेरे पढ़ाने की वजह से आ रहे हो ना। ठीक है, तो ये हो गया शेड्यूल 2। ठीक है, ये हो गया आपका शेड्यूल 2। तो अब यहां पर हम लोगों ने क्या बात की? यहां पर हम लोगों ने कहा कि सबसेक्शन 1A के अंदर हम लोग बात करेंगे शेड्यूल 2 के बारे में, जो स्पेसिफिकली बाइफरकेशन करता है कि कौन सी सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और कौन सी सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। ठीक है, तो शेड्यूल 2 में हम लोगों को स्पेसिफिकली पता चलेगा कि ये वाली सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और ये वाली सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। राइट, अब हम लोग आते हैं शेड्यूल 2 में एक एक करके। तो यहां पर देखो आप, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 7(1)(a). As per section 7(1)(a), where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of section 7(1), मतलब जो चीज ऑलरेडी सप्लाई है, जो चीज सप्लाई है, they shall be treated either as a supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2। तो शेड्यूल 2 के हिसाब से उनको देखा जाएगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। Section 7(1)(a) classifies certain activities, transactions constituting supply either as a supply of goods or as a supply of services. Schedule 2 to the CGST Act contains a list of activities or transactions which have been classified either as supply of goods or supply of services. Under the earlier tax regime, the restaurants used to charge both service tax and VAT on the value of food served. This is so because both the sale of goods and provision of service was involved, and therefore taxable event under both the statutes, that is respective VAT law and service tax law, got triggered. Under GST, the supply by a restaurant is treated as a composite supply. Concept of composite supply को अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। Since food and service is naturally bundled in the ordinary course of business. Further, entry 6B of Schedule 2, Schedule 2 अभी हम लोग पूरा पढ़ने जा रहे हैं, उसकी entry 6B specifically provides that such composite supply shall be treated as supply of services. ठीक है, इसने स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाएगा। Hence the entire value of invoice shall be treated as value of service and leviable to GST accordingly. अब आओ एक एक करके करते हैं, मैं एक एक चीज पढ़ूंगा, आप ऑटोमेटिकली मुझे बता पाओगे कि सर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। मैं आपको ट्रांजैक्शन समझा दूंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आता तो आपको ये समझना होगा कि आपको उसको याद करना होगा, क्योंकि वो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। लेकिन 99% ऑफ द एक्टिविटीज, 99% ऑफ द ट्रांजैक्शंस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। ठीक है, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। अगर मैं दुकान पर जाकर कुछ सामान खरीदता हूं तो दुकानदार जब मुझे वो सामान बेचता है तो वो मुझे उस सामान की ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो जब भी मैं दुकान पे जाकर कुछ भी सामान खरीदता हूं तो दुकानदार जो मुझे सामान बेचता है, इसका मतलब है कि दुकानदार मुझे उस सामान की ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। मुझे एक बात बताओ, ये जो दुकानदार मुझे सामान की ओनरशिप ट्रांसफर करता है, इसको मैं सप्लाई ऑफ गुड्स बोलूंगा या इसको मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलूंगा? इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे? फटाफट से बताओ, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? श्रेया सिंह कह रही है सॉग। कम से कम गुड्स ही लिख देते, सॉग। सीरियसली? ऑलराइट, सप्लाई ऑफ गुड्स, वेरी नाइस। धत्रिका, अंश, वानी, बीना, मुस्कान, प्रथम, रौनक, आशीष, पवन, संकेत, प्रियांशी, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, कॉमन सेंस है, यहां पर भी वही दिया हुआ है। नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयरऑफ।
सपोज आप मेरे पास आते हो, आप मुझसे कहते हो कि सर आप अपना कैमरा दे दो मुझे यूज करने के लिए, मैं आज के लिए उसको यूज करूंगा और कल मैं आपको आपका कैमरा वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा एक दिन के लिए मैं किराया लूंगा कैमरे का। तो आपने कहा ठीक है, हाँ सर। तो आपने मुझे एक दिन का मेरे कैमरे यूज करने का 10,000 रुपए दिया। ठीक है, मैंने सपोज आपको अपना कैमरा यूज करने के लिए दिया और एक दिन यूज करने के लिए आपने मुझे मेरा कैमरा एक दिन यूज करने के लिए आपने मुझे 10,000 रुपए पे किया, राइट। अब मैं आपको अपने गुड्स का अधिकार दे रहा हूं, ठीक है। आई एम ट्रांसफरिंग अ राइट इन माई गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन माई गुड्स। लेकिन क्या मैं अपने गुड्स की टाइटल यानी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं? टाइटल मतलब ओनरशिप। क्या मैं अपने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपने गुड्स को सिर्फ आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं और उसके लिए मैं पैसा ले रहा हूं और मैं आपको अपने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट देखो, any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed। जैसे हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज में ये होता है कि मैं गया और मैं उसको एक तरह से मैं किराए पर ले आया, लेकिन वो किराया क्या है? मैं उसका किराया पे किए जा रहा हूं, राइट, या मैं इंस्टॉलमेंट्स में कोई चीज खरीद रहा हूं, राइट। तो अभी क्या होता है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप फोन खरीदते हो ईएमआई पर। अगर आपने ईएमआई पर फोन खरीदा तो फोन अल्टीमेटली आपके पास कब जाएगा? जब आप सारी किस्तें उसकी भर दोगे तभी जाएगा, ठीक है। फोन आप यूज करना पहले से शुरू कर दोगे। सपोज आज आपने फोन को यूज करना शुरू किया, लेकिन आपके पास फोन की ओनरशिप नहीं आई। फोन की ओनरशिप क्यों नहीं आई? क्योंकि जब तक आप बैंक को या जब तक आप अपने सप्लायर को सारी की सारी किस्तें नहीं पे कर देते, तब तक आपके पास ओनरशिप नहीं आती। लेकिन अल्टीमेटली तो ओनरशिप आप ही के पास आ रही है ना। Just because you are paying the money in installments doesn't make it a non-sale activity, right? फाइनली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स ही तो हो रहा है। तो अब ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो रहा है। अगर आप एक झटके में पेमेंट दो या आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दो, बात तो एक ही है। तो एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट विच स्टिप्यूलेट्स, जो ऐसा कहता है दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड। तो फ्यूचर डेट में जब आप सारे कंसिडरेशन पे कर दोगे, तब हम आपको इसकी प्रॉपर्टी पास ऑन कर देंगे, तब हम आपको इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। बताओ ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? सप्लाई ऑफ गुड्स, सिंपल एकदम सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर्स। शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर्स। Is this a supply of goods or supply of services? बताओ मुझे। Goods, clear है। Next, Genius Equipments Limited gave a machinery on rent to Suhasini manufacturers. Is this a supply of goods or supply of services? Machinery दी है किराए पर। सर्विस, ठीक है, किराए पर दी है ना। ऐसा थोड़ी है कि बाद में तुम्हारी ही हो जाएगी। तुम मशीनरी को यूज करो, मुझे किराया दो, तो दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, ध्रुवा कैपिटल्स सप्लाइड गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू इट्स कस्टमर्स। अब हायर परचेज है, ठीक है। हायर परचेज का मतलब वही हो जाएगा कि तुम अभी सामान ले जाओ, यूज करते रहो, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हारा पेमेंट पूरा हो जाएगा तब तुम्हें ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देंगे। इज दिस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज? बताओ मुझे। गुड्स, क्लियरली गुड्स। ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर्स सप्लाइज टॉयज टू रिटेलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है, सेल या रिटर्न बेसिस पर ये करता है। अब सेल और रिटर्न बेसिस भी क्या है? इज दिस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज? गुड्स है ये भी, ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस। तो अल्टीमेटली अगर होगी सप्लाई होगी तो सेल ही होगा ना। तो सेल और रिटर्न बेसिस, दिस इज आल्सो सप्लाई ऑफ गुड्स। Mr. X provides certain goods to Mr. Y and he permits Mr. Y to use these goods provided Mr. Y pays for the goods at the end of 1 month when the property of goods will be transferred to Mr. Y. Is this supply of goods or supply of services? बताओ ये। यहां पर मैं कह रहा हूं कि आप सामान ले जाओ, सामान ले जाकर उसको यूज करो, 1 महीने बाद इसका पेमेंट दे देना। 1 महीने बाद जब आप इसका पेमेंट दोगे तब आपके ऊपर ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी। सप्लाई ऑफ गुड्स, वेरी सिंपल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल और पोजीशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। इसके तो थियोरेटिकल आंसर है, मैं दे दूंगा। The goods supplied on hire purchase basis will be treated as supply of services. Examine the validity of this statement. तो यहां पर यही हो जाएगा कि no, this statement is not valid, क्योंकि hire purchase पर अगर दिया जाता है तो उसको supply of services, उसको supply of goods माना जाता है, not supply of services,
ठीक है, चलो शेड्यूल 2 पैरा 2 देखो। शेड्यूल 2 पैरा 2 बात करता है लैंड और बिल्डिंग के बारे में। अब मेरी बात आराम आराम से सुनते रहना आप लोग, ठीक है। जीएसटी लॉ के अंदर सेल ऑफ बिल्डिंग, जीएसटी लॉ के अंदर सेल ऑफ बिल्डिंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। सेल ऑफ बिल्डिंग को, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। सिंपल हो गई बात। जब आप जमीन बेचते हो या आप बिल्डिंग बेचते हो तो इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग में अगर कोई सेल वगैरह होती है तो इसको ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। अब अगर लैंड एंड बिल्डिंग के बेचने के अलावा कुछ हो सकता है तो वही तो हो सकता है कि लैंड का या तो यूज करने के लिए, चाहे आप किराए पर ले लो, लीज पर ले लो जमीन को, और बिल्डिंग में आप क्या दे सकते हो, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे सकते हो, बिल्डिंग रेंट पर ले सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये दोनों ही चीजें क्या हो जाएंगी, ये दोनों चीजें सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, फॉर एग्जांपल लीज एग्रीमेंट ऑफ लैंड, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। दोनों का मोटा मोटा मतलब यही हो जाता है कि अगर आप अपनी लैंड या बिल्डिंग को किराए पर देते हो तो इसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलते हैं। एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी खास समझाने का था, ठीक। फॉर एग्जाम्पल शॉप लेंट आउट इन अ बिजी मार्केट एरिया। नेक्स्ट आता है आपका ट्रीटमेंट और प्रोसेस। मैं आपको एक बहुत ही फनी स्टोरी बताता हूं। लड़कों को मेरे ख्याल से नहीं पता होगा, लड़कियों को तो मोस्टली पता ही हो गई ये बात। हो सकता है लड़कों को ना पता हो, क्योंकि मुझे ये चीज नहीं पता थी, ठीक है। मुझे ये चीज नहीं पता थी। मुझे ये चीज पता चली 2019 में जब मेरी शादी होने वाली थी। तो 2019 में जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं और मेरी वाइफ, मतलब उस समय तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, चारू, तो हम दोनों घूम रहे थे दुकानों पे, शॉपिंग वॉपिंग चल रही थी। तो चारू मैम ने एक सूट खरीदा, चारू मैम ने एक सूट खरीदा, ठीक है। और उस सूट के साथ का दुपट्टा नहीं खरीदा। मैंने कहा ये क्यों नहीं किया? अगर तुमने कुर्ती खरीद ली है, अगर तुमने उसके साथ का लोअर खरीद लिया है, चूड़ीदार या व्हाटएवर, तो तुमने इसके साथ का दुपट्टा क्यों नहीं खरीदा? तुमने इसके साथ की चुन्नी क्यों नहीं खरीदी? बोली वो मैं दूसरी दुकान से खरीदूंगी। मैंने कहा है ये क्या मतलब हुआ? चलो भाई, होगा गर्ल लॉजिक, आई डोंट नो। हम दूसरी दुकान पर गए जहां से उन्होंने चुन्नी खरीदी। अब उन्होंने वो चुन्नी या दुपट्टा खरीदा, वो पूरा व्हाइट कलर का था, वो पूरा व्हाइट कलर का था। मैंने कहा पर सूट तो येलो है, येलो सूट के ऊपर ये व्हाइट दुपट्टा जाएगा क्या? मैं ये लाइन बोलते ही अपने आप को लेकर अमेज़। मैंने कहा अरे यार, मुझे ये सारी चीजें कब से समझ में आने लग गई कि येलो सूट के साथ व्हाइट दुपट्टा जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी बोल दिया। अब मैंने बोल दिया तो मैं खुद को लेकर अमेज़। मैंने कहा वाह, मेरे मन में ऐसी भी बात आ सकती है, आई डिडंट नो इट। कोई बात नहीं। तो चारों मैम ने व्हाइट दुपट्टा लिया, बोली कि नहीं नहीं वो हो जाएगा, वो मैं करवा लूंगी। मैंने कहा पता नहीं कैसे व्हाइट दुपट्टा येलो सूट के साथ जाएगा। मैंने कहा चलो होगा, सम गर्ल लॉजिक, गर्ल फैशन, आई डोंट नो। हम उस दुकान से दुपट्टा लेकर तीसरी दुकान पर गए और तीसरी दुकान पर चारू मैम ने ये व्हाइट दुपट्टा आंटी को दिया और कहा कि आंटी इसको ना इस सूट के कलर से मैचिंग कलर में डाई करना है। मैंने कहा क्या? बोली हाँ। आंटी को उसने सूट दिखाया और आंटी को उसने दुपट्टा दिया और दुपट्टा दिखाने के बाद उसने आंटी से कहा कि ये जो कुर्ती है, इस कुर्ती के साथ इस दुपट्टे को मैच करवाना है और दुपट्टे में वैसा ही कलर की डाई करनी है। कितने लड़कों को यह बात पता थी कि कपड़े डाई हो सकते हैं, या लड़कियां ऐसा कराती हैं कि वो कपड़े खरीद कर उसको डाई, उसका कलर बदलवा लेती हैं? क्या हम कभी सोच सकते हैं अपने दिमाग में, क्या हम कभी सोच सकते हैं कि मैं व्हाइट शर्ट खरीदूंगा और उस पर यहां पर ऐसे ब्लैक कलर का डाई करा लूंगा? क्या हम लोग कभी सोच सकते हैं? श्रद्धा कह रही है लड़की हो के भी मुझे नहीं पता लड़कियां ऐसा कैसे करती हैं। लड़कियां ऐसा करती हैं, हां, चीन टपाक डमडम। मालूम ही नहीं था भाई कि अच्छा ऐसे डाई वाई भी हो रही है। सब लड़कियां नहीं करती सर।
अरे ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, मतलब डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। मैं कहां कह रहा हूं सब लड़कियां करती हैं या नहीं करती हैं, मैं तो प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं ना। इतना फेमिनिज्म प्रमोट करने की, इतना इतना फेमिनिस्ट होने की जरूरत नहीं है धत्रिका, सब लड़कियां नहीं करती हैं। अरे मैंने कहां कहा सब लड़कियां करती हैं या सब लड़कियां नहीं करती हैं? मैं तो कह रहा हूं तुम्हें पता था कि ऐसी कोई चीज पॉसिबल है? पूरी बात सुन लो दीदी, उसके बाद लड़ो आके, ठीक है? तो मैं तो कह रहा हूं कि सब लड़कियां करती हैं या नहीं करती हैं, ये तो मैटर ही नहीं है। मैं कह रहा हूं चारू मैम ने व्हाइट कलर के दुपट्टे को येलो कलर का डाई करवा लिया, ये चीज तो हमें नहीं पता होती है ना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। केशव कह रहे हैं पता था मेरे को सर, हम लोगों का बिजनेस ही कपड़ों का है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगली बार चारू मैम को दुपट्टा डाई कराना होगा, केशव मैं आपकी दुकान पे ले आऊंगा, ठीक है? ठीक है। नल कह रहा है बट वाई, अब मुझे क्या पता हुआ है, होगा कोई फीमेल लॉजिक, होगा कोई गर्ल लॉजिक। येलो कलर का सूट अगर खरीदा है तो उसके साथ की दुपट्टा नहीं मिल रहा होगा, तो सोचा होगा चलो व्हाइट खरीद के उसको डाई करा लेते हैं, ठीक है? एनीवे, केशव ने कह दिया श्योर सर, चलो बहुत बढ़िया। अब नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर वो आंटी दुपट्टे पर येलो कलर का पेंट कर रही हैं, तो क्या वो आंटी आपको पेंट बेच रही हैं या वो आपके दुपट्टे में डाई करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं? इज दैट आंटी सेलिंग यू गुड्स और इज दैट आंटी सेलिंग यू सर्विसेज? दैट इज माय क्वेश्चन, दैट इज माय क्वेश्चन। क्या वो आंटी गुड्स सेल कर रही है, सप्लाई कर रही है, सर्विसेज कर रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इतनी सी बात है, और इसी के लिए यहां पर यह है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सन्स गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक, तो देखो, दमानी डाइंग हाउस डाइज द क्लोथ्स गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल्स लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस। इज दिस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज? दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दिस इज क्लियरली अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक, आइए शेड्यूल 2 पैरा 4 पर आते हैं। शेड्यूल 2 के पैरा 4 पर आते हैं। देखो, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब यहां पर ये क्या चीज है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय या अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स। इसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो अब यहां पर क्या हो गया, अच्छा यहां पर ये मत लगाना विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, यहां पर सब कुछ विद कंसिडरेशन है, फॉर अ कंसिडरेशन है, ठीक है? यहां पर सारी चीजें फॉर अ कंसिडरेशन है, वो विदाउट कंसिडरेशन वाली चीजें गई, अब शेड्यूल 1 ओवर हो गया, राइट? यहां पर ये बात कही जा रही है कि अगर मैं अपने बिजनेस के कुछ एसेट्स में से कुछ सामान निकालकर किसी को दे देता हूं यूज करने के लिए, और मैं कहता हूं बेटा तू ले जा, बेटा तू ले जा, ठीक है? तो अब क्या वो मेरे लिए सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा? कॉमन सेंस है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। मैंने अपने बिजनेस के स्टॉक में से कोई चीज निकालकर किसी को दे दी, राइट? सपोज मेरा किसी चीज का बिजनेस है, मेरा लेट्स से टॉयज का बिजनेस है। कल को मेरी बहन आती है अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर, और वो बच्ची तो कुछ भी देखे, अरे मामा मामा ये वाला टॉय, मामा ये वाला टॉय, तो मैं उन लोगों से पैसे थोड़ी लूंगा, मैं कहूंगा जा बेटा ले जा, तेरे को जो जो टॉय चाहिए ले जा, जो टॉय चाहिए ले जा, ठीक है? मैं तो यही बोलूंगा ना। तो अब मैं अगर बोल रहा हूं जो टॉय चाहिए ले जा, तो अब क्या वो टॉय मेरा बिजनेस का पार्ट बनेगा? क्या मैं उससे कहूंगा कि नहीं तू खेल के मेरे को वापस दे दियो वो टॉय? ऑब्वियसली नहीं कहूंगा ना। तो अब अगर मैं उसको वो टॉय वापस नहीं लूंगा, तो अब मेरे एसेट्स का पार्ट बना क्या? वो बिल्कुल भी नहीं बना। अब अगर मेरे एसेट्स में से वो गुड्स निकल गए, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे? जाहिर सी बात है इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, सिंपल। इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक? नेक्स्ट देखो, goods held या used for business are put to private use or are made available to any person for use of any person other than business by या under the directions of the person carrying on business। इसको बोलेंगे supply of services। अब यहां पर क्या मतलब हुआ, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? पहला वाला जो था, इसमें था कि goods are no longer forming part of the assets। अब एक बार गुड्स अगर निकल गए तो नो लॉन्गर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स, ठीक है? लेकिन अगर मान लो वो बच्ची यहां पर आती है, मेरी बहन अपनी बेटी के साथ मेरे खिलौनों की दुकान पर आती है, और मैं और मेरी बहन बात कर रहे हैं, लेकिन वो बच्ची शोर मचा रही है, किड्स, तो बच्ची शोर मचा रही है, कुछ हो रहा है, तो अब उसको खेलने के लिए, वहीं पर खेलने के लिए एक खिलौना दिया। अब उसको वहीं पर खेलने के लिए एक खिलौना दिया निकालकर, और वो जाते जाते उसने वो खिलौना क्या किया, उसने ठीक है हो गया, अब और नहीं चाहिए, वापस कर दो, ठीक है? तो अब क्या मैंने उसको गुड्स बेच दिए? नहीं, अब मैंने उसको सर्विसेज दी। अब मैंने सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया, क्योंकि मैंने अपने गुड्स को यूज करने का अधिकार दे दिया एक तरह से, ठीक है? अब मैंने अपने बिजनेस एसेट्स में पड़े हुए स्टॉक को यूज करने का अधिकार दिया, मैंने उसको बेचा नहीं,
मैंने उसको बेचा नहीं, और अगर मैंने उसको बेचा नहीं तो ये क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गई। ठीक है, यहां पर क्या था, यहां पर था कि गुड्स बेच दिए, क्यों, क्योंकि गुड्स को मैंने परमानेंटली अपने बिजनेस से निकाल दिया। नाउ दोस गुड्स आर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ माय बिजनेस एसेट्स। यहां पर क्या है, those goods are being used by someone else या by me, प्राइवेट यूज के लिए हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, सिंपल। अब देखिए आप भाई साहब यहां, अब देखिए आप भाई साहब यहां, मैं एक मजे की चीज आप लोगों को समझाता हूं। सपोज मैं कैमरास बना बना के बेच रहा हूं, सपोज मैं कैमरास बना बना के बेच रहा हूं, सपोज मैं कैमरास बना बनाकर बेच रहा हूं। अब क्या हुआ, मेरा जो टर्नओवर है वो 40 लाख रुपए क्रॉस कर गया, मेरा जो टर्नओवर है वो 40 लाख रुपए क्रॉस कर गया। मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। अब मैं रजिस्टर्ड हूं, क्या मेरी बैलेंस शीट में स्टॉक के अंदर कैमरास का स्टॉक पड़ा हुआ होगा? क्या मेरी बैलेंस शीट में स्टॉक के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर, स्टॉक के अंदर कैमरास का स्टॉक पड़ा हुआ होगा? डेफिनेटली पड़ा हुआ होगा। ठीक है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं क्योंकि मेरा टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर चुका है। वन फाइन डे 16 अगस्त 2024 को अचानक से, 16 अगस्त 2024 को अचानक से सीबीआईसी की वेबसाइट पर, अचानक से सीबीआईसी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक नोटिफिकेशन आ जाता है। अचानक से 16 अगस्त 2024 को सीबीआईसी के वेबसाइट पर अचानक से एक नोटिफिकेशन आ जाता है और वो कहते हैं कि कैमरास पर अब जीएसटी नहीं लगेगा, कैमरास पर अब से जीएसटी नहीं लगेगा। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कैमरास पे अब से जीएसटी नहीं लगेगा। मुझे एक बात बताओ, मैं सिर्फ कैमरास बेचता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कैमरास बेचता हूं और मेरा कोई बिजनेस नहीं है, और अगर कैमरास पर जीएसटी नहीं लगेगा तो डू आई स्टिल नीड टू कीप माई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन? डू आई स्टिल नीड टू कीप माई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन? अब तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है ना, अब मेरे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि द ओनली थिंग दैट आई एम सेलिंग बिकॉज ऑफ व्हिच आई ऑब्टेन्ड द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नाउ दैट थिंग इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो क्या अब मैं जब कैमरा सप्लाई करूंगा तो मैं अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो क्या मेरे लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्ड करना मैंडेटरी रहेगा? क्या उसका कोई सेंस बनेगा? ना, कोई सेंस नहीं बनेगा। आदित्य, केशव, कुशल, बीना, ठीक है, रौनक, संकेत, एब्सोल्युटली उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, राइट? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आई एम नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन? कैन आई से दैट आई एम नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन? आई एम नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन, कैन आई से दैट? ऑफ कोर्स आई कैन से दैट, राइट? बट सिंस आई एम नो लॉन्गर अ टैक्सेबल पर्सन, मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टॉक में मेरे पास जितने भी कैमरास हैं, इनको मैंने खरीदा होगा, इन पर मैंने जीएसटी पे किया होगा, और इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मैं अवेल कर चुका हूंगा। इन कैमरास को मैंने जब खरीदा होगा तो इन पर मैंने जीएसटी पे किया होगा, और इस जीएसटी को पे जो मैंने किया है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मैं अवेल कर ही चुका हूंगा, राइट? तो अब मैं टैक्सेबल पर्सन बचा नहीं। लॉजिक समझना, मैं टैक्सेबल पर्सन अब तो बचा नहीं। तो अब मैं इन कैमरास को जब बेचूंगा तो क्या मैं जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को पे करूंगा? नहीं। बात समझ रहे हो आप? जब मैंने खरीदा, मैंने जीएसटी पे किया, इस जीएसटी का क्रेडिट मैंने ले लिया, लेकिन अब जब मैं इन कैमरास को बेचूंगा तो बेचते समय मैं जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सप्लाई तो एग्जेम्प्ट हो गई है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, जब मैंने कैमरा खरीदा तो मैंने उस पर जीएसटी पे किया तो मैंने उसका क्रेडिट भी ले लिया, लेकिन जब अब मैं कैमरास को आगे बेचूंगा तो क्या मैं इन कैमरास पर जीएसटी ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। तो आपको नहीं लगता इससे सरकार का नुकसान होगा? आपको नहीं लगता इससे सरकार का नुकसान होगा? यस, इससे सरकार का बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने कहा कि जैसे ही एक बंदा सीजेस टू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, जैसे ही अ टैक्सेबल पर्सन सीजेस टू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। तो जैसे 16 अगस्त 2024 को सीबीआईसी के नोटिफिकेशन की वजह से अब मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, तो सरकार कहती है कि उससे ठीक एक दिन पहले, यानी 15 अगस्त 2024 को हम मान लेंगे कि तुम्हारे स्टॉक में जितने भी कैमरास पड़े हैं वो सारे के सारे बिक गए। फेयर इनफ?
फेयर इनफ। सरकार कहती है कि हम मान लेंगे कि जिस दिन तुम टैक्सेबल पर्सन बनना बंद हुए हो उससे ठीक एक दिन पहले तुम्हारे स्टॉक में जितना भी माल पड़ा हुआ था जिस पर तुम जीएसटी का क्रेडिट ले चुके थे वो सारा का सारा माल बिक गया है। हम ऐसा मान लेंगे कि वो सारा का सारा माल बिक गया है और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। इसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, मैंने ये जो एग्जांपल लिया ना कि ये गुड्स एग्जेम्प्ट हो गए, ये सिर्फ एग्जांपल था। लॉ में ये बोला गया है कि मैं किसी भी कारणवश अगर टैक्सेबल पर्सन अब नहीं रहा तो, ठीक है, वो कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि हो सकता है कई साल पहले मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, मेरा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गया हो, मैं रजिस्टर्ड पर्सन था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी सेल गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। अब अगर धीरे धीरे मेरी सेल गिरती जा रही है तो मेरी सेल 40 लाख से ऊपर पहुंच ही नहीं पा रही है। अब अगर मेरी सेल 40 लाख से ऊपर नहीं पहुंच पा रही है तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाके बोलूंगा ना कि सर देखो, मैं पहले होता था, दोज वर द गुड डेज जहां पर मेरी सेल ज्यादा जाती थी, अब मेरी सेल ज्यादा जा ही नहीं रही है। अब अगर मेरी सेल ज्यादा नहीं जा रही तो मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो ना यार, आई नो लॉन्गर आई एम अ टैक्सेबल पर्सन एनीमोर। ठीक है, तो whenever I cease to be a taxable person for whatever reason, एक रीजन मैंने यहां पर आपको दिया एग्जांपल के तौर पर, वैसा वाला के गुड्स ही एग्जेम्प्ट हो गए। दूसरा मैंने आपको दिया कि मेरी सप्लाईज कम होती जा रही है, मेरी सेल गिरती जा रही है। अगर मेरी सेल गिरती जा रही है तो फिर मैं कर ही नहीं पा रहा हूं अपना, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर वट एवर रीजन इफ आई सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो जिस दिन आई सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन उससे जस्ट एक दिन पहले जितना भी सामान मेरे स्टॉक में पड़ा होगा जिस पर मैं आईटीसी ऑलरेडी ले चुका होगा, मान लिया जाएगा कि वो सारा का सारा सामान बिक गया है और इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। ठीक है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। इसके दो एक्सेप्शंस है। अगर मान लो मैं अपना बिजनेस बेच दे रहा हूं एज अ गोइंग कंसर्न, ऐसा हो सकता है मैंने अपना बिजनेस बेच दिया एज अ गोइंग कंसर्न, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि फिर तो सरकार को मालूम है ना, मतलब अब मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा क्योंकि मैंने अपना बिजनेस बेच दिया। अब मैंने अपना बिजनेस बेच दिया, अब मैं चाहता हूं कि यार लमसम पैसा आ गया, मैं रिटायर करूंगा आराम से। ठीक है, तो अब मैंने अपना बिजनेस बेच दिया, लेकिन जिसको बेचा वो तो आगे इसको माल को आगे बेचेगा ना, तो सरकार को टैक्स मिल जाएगा। तो अगर मैंने एज अ गोइंग कंसर्न ही अपने बिजनेस को बेच दिया तो ये वाली चीज मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगी। या दूसरी चीज, अगर मैंने किसी एक बंदे को अपॉइंट कर दिया कि यार अब मुझे बिजनेस नहीं चलाना, बिजनेस रहेगा, तुझे चलाना हो तू चला, इस बिजनेस की बागडोर अब तू ही संभाल। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ कर दिया तो भी मेरे ऊपर ये वाला एक्सेप्शन, तो भी मुझ पर ये वाला क्लॉज नहीं लगेगा। आओ देखते हैं। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ पर्सन, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स, तभी मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स, तो गुड्स, ठीक है, कैमरास फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person, कोई भी पर्सन जो अब टैक्सेबल पर्सन नहीं बचा, shall be deemed to be supplied by him, मान लिया जाएगा कि उसने इन गुड्स को सप्लाई कर दिया in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि अगर 16 तारीख को आई सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन तो 15 को मान लिया जाएगा कि गुड्स बिक गए। ठीक है, तो immediately before I cease to be a taxable person, it shall be deemed that I have supplied all the goods. However, following are the two exceptions. Business is transferred as a going concern to another person. Business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person. क्या ये तीसरा क्लॉज आपको क्लियरली समझ में आ गया? सईदा कह रही है सर इफ बिजनेस इज वाउंड अप, इफ द बिजनेस इज वाउंड अप, अगेन ये वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपना बिजनेस वाइंड अप कर दे रहा हूं तो भी मैं टैक्सेबल पर्सन तो अब बचा नहीं, तो सेम चीज हो जाएगी। आरची क्या कह रही है? तो सर उन गुड्स की जीएसटी गवर्नमेंट को तो पे करनी पड़ेगी ना, तो सर उन गुड्स की जीएसटी गवर्नमेंट को तो पे करनी पड़ेगी। हाँ, वही तो पॉइंट है ना इसका आरची, वही तो पॉइंट है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा तो फिर जीएसटी पे करनी पड़ेगी। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होगा मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये होता है कि मुझे या तो वो जीएसटी सरकार को पे करना पड़ता है या तो मुझे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता है। यही पॉइंट है, पॉइंट यही है कि हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स इसीलिए तो मान रहे हैं ना क्योंकि सरकार कहती है भाई इस पर जीएसटी पे करो, तुमने फालतू में क्रेडिट ले रखा है ना, तुमने इसका क्रेडिट ले रखा है तो सरकार का तो नुकसान हुआ, तो हमें इसको पे करना पड़ेगा। यही सेम, सही समझे हो आप आर्ची?
ठीक है, आप बिल्कुल सही समझो, राइट। और अगर बिजनेस वाउंड अप हो रहा है, अगर बिजनेस का वाइंडिंग अप किया जा रहा है, तब डेफिनेटली इसको वही माना जाएगा। तब भी वही बात हो जाएगी कि हम लोगों ने मतलब आई सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तब भी यही वाली चीज हो जाएगी। आओ देखो, मिस्टर एक्स इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. He disposed of a defective refrigerator for 50,000 rupees to G, whereas its normal price is 3,50,000 rupees. Is this a supply of goods or a supply of services? ये कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहा था, उसने एक डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर अपने दोस्त को 50,000 रुपए में बेच दिया, इसका नॉर्मल प्राइस 3,50,000 था। बताओ, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन सर, फिर कंज्यूमर्स भी उन गुड्स पे करेंगे जीएसटी। श्रेया इन सब चीजों के बारे में इवेंचुअली बात करेंगे। एम्स याद रखो आपने, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी और हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं कि फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ये सारी चीजें इवेंचुअली क्लियर होंगी। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, लेकिन वो धीरे 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 सॉल्व होंगे। एक्चुअली जीएसटी इतना ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं इसमें एक्सेसिवली स्लो भी चल रहा हूँ। एक्सेसिवली स्लो तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। और ये सारी चीजें इवेंचुअली एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस इवेंचुअली, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। चलो नेक्स्ट हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज यूजिंग अ कार प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फॉर पर्सनल पर्पस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 50,000 रुपीज। इज दिस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज? तो यहां पर कार यूज कर रहा है, कार बेची नहीं गई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज यूजिंग अ कार प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फॉर पर्सनल पर्पस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 50,000 रुपीज। तो कार प्रोवाइड की है कंपनी ने, उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करा है, 50,000 रुपए का कंसिडरेशन है। दिस इज क्लियरली अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंपनी ने आपको गाड़ी दे रखी है, कंपनी ने आपको गाड़ी दे रखी है, ठीक। Arun, a trader, is winding up his business. What would be the treatment of any goods left in his stock? तो जिन्होंने भी पूछा था कि वाइंडिंग अप में क्या होगा, सईदा शायद आपने पूछा था, तो वाइंडिंग अप में भी वही वाली चीज हो जाएगी कि गुड्स में अगर स्टॉक में आपके पास कोई भी गुड्स होंगे तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, ठीक है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। तो अगर बिजनेस की वाइंडिंग अप होगी तो ये जितने भी आपके पास स्टॉक पड़ा होगा इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। डन। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म एंड हैविंग गुड्स ए एंड बी इन स्टॉक। अब मिस्टर एक्स और वाई अपना पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं और उनके पास ये दो गुड्स हैं। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एंड द गुड्स ए एंड बी आर टेकन ओवर बाय मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई रिस्पेक्टिवली। अब इन्होंने कहा कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देते हैं। द बिजनेस इज नॉट कंटिन्यूड फर्दर। अगेन वाइंडिंग अप वाली चीज आ गई। इज दिस टेकिंग ओवर ऑफ गुड्स कंसिडर्ड अ सप्लाई? ऑफ कोर्स यस। इफ यस, इज दिस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। डन। ऑफ कोर्स दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। 4 पैराज हमारे पास हो गए हैं कंप्लीट, 4 पैराज हमारे कंप्लीट हो गए। जो पहली एंट्री थी या पहला पैरा था वो क्या था? ट्रांसफर ऑफ टाइटल वाली बात थी। अगर मैं गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर देता हूं तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। अगर मैं गुड्स को ट्रांसफर करता हूं लेकिन टाइटल अभी भी मेरे पास रहता है, आपको सिर्फ यूज करने का अधिकार देता हूं, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ गुड्स ऐसे यूज करने के लिए दे देता हूं कि आप मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहिए और फाइनल डेट जब सारी इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर चुके होंगे तब मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा, तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। जो एंट्री नंबर 2 थी वो लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड थी। तो लैंड और बिल्डिंग की सेल को तो जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड जो बाकी सर्विसेज होंगी, लैंड को किराए पर देना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग को किराए पर देना वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाएगा। जो पैरा नंबर 3 था वो था ट्रीटमेंट और प्रोसेस वाला था कि अगर आपके प्रोडक्ट पर मैं कोई ट्रीटमेंट करके दे रहा हूं तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। यहां पर मैंने आपको डाई वाला एग्जांपल दिया था। एक एग्जांपल यहां पर और होता है कि अगर आप अपना फोन लेकर जाते हो सर्विस सेंटर के पास और आपका सर्विस सेंटर के अंदर फोन, आप सर्विस सेंटर वाले आपके फोन में कुछ नए पार्ट्स लगाते हैं, तो हम लोग यही बोलेंगे कि उन्होंने आपको सर्विस दी। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको उन्होंने वो पार्ट्स बेचे हैं, राइट, क्योंकि प्राइमरीली वो क्या है? प्राइमरीली वो सर्विस है, राइट। तो अगर आप कोई सामान लेकर जाते हो और उस पर आप कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करवाते हो तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाता है। फिर क्लॉज 4 में हम लोगों ने देखा कि अगर मैं अपने गुड्स को अपने बिजनेस से परमानेंटली हटा देता हूं और किसी और को यूज करने के लिए दे देता हूं तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। इसी में हम लोगों ने दूसरा पार्ट देखा कि अगर मेरे बिजनेस से गुड्स निकल जाते हैं लेकिन वो वापस भी आ जाते हैं, सिर्फ पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज करने के लिए मैं दे रहा हूं, तो फिर इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। और तीसरी चीज मैंने बोली कि अगर कोई टैक्सेबल बंदा
सीजेस टू बिकम अ टैक्सेबल बंदा, तो जिस दिन वो टैक्सेबल बंदा बनने से सीज करता है उसके ठीक एक दिन पहले मान लिया जाता है कि सारे के सारे गुड्स बिक गए, और वो सारे के सारे गुड्स जो बिक गए उसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है। इस क्लॉज के दो एक्सेप्शंस हैं। दो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप अपना बिजनेस गोइंग कंसर्न की तरफ से बेच रहे हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो भी बंदा आएगा वो आपके गुड्स को बेचेगा, सरकार को जीएसटी पे कर देगा। और दूसरी चीज इसमें थी कि अगर आप अपनी जगह पर कोई एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रहे हो जो आपके बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा और आपके बिहाफ पर सामान वगैरह बेचेगा, तो भी ये वाली चीज अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोगों के पास आती है मजेदार एक शेड्यूल है, और वो शेड्यूल है शेड्यूल 2 पैरा 5। ठीक है, शेड्यूल 2 पैरा 5, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसके बारे में बात करना, अब इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से आप लोगों को पैरा 2 करवा दे रहा हूं। एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, फॉर एग्जांपल लीज एग्रीमेंट ऑफ लैंड सर्विसेज, any lease or letting out of a building including a commercial, industrial or residential complex for business या commerce wholly or partly, बिल्डिंग को रेंट पे देना, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, आप पैरा 5 में आओ। पैरा 5 बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। पैरा 5 में कुछ 6-7 चीजें मेंशन है, 6 चीजें मेंशन है। ठीक है, और बहुत आराम से सुनना, अब आज का हमारा पूरा डिस्कशन पैरा 5 पर ही जाएगा। हो सकता है कल भी पैरा 5 वाला डिस्कशन हम लोगों को थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़े, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पैरा 5 का डिस्कशन आज हमारा कंप्लीट हो जाए। अगर आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पर दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये तो नो ब्रेनर टाइप का है। ठीक है, अगर आप एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो, अगर आप एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो, अब उसमें आप कुछ भी बोल सकते हो, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन वगैरह 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 वगैरह, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। सेल ऑफ बिल्डिंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब देखो, construction of a complex building, civil structure or a part thereof, including a complex or a building intended for sale to buyer, intended for sale to buyer, मतलब मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे दो। अब देखो, जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है ना, तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। कोई एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी हो सकती है। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंजीनियर हो सकता है, वो आर्किटेक्ट हो सकता है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और भी कोई चीज हो सकती है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमारा मकान बनकर कंस्ट्रक्ट होता है, तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है, राइट। तो अगर मैं आपके पास आया हूं और आपसे मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज मेरे लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, आप मेरे लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैं आपको कंसिडरेशन देता हूं, और उसके बाद हम लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, आप मेरे लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कंसिडरेशन देता हूं, और बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। लेकिन एक दूसरी चीज, आप एक बिल्डर हो, आप एक बिल्डर हो, आपके पास अपनी खुद की कंस्ट्रक्टेड बहुत सारी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपके पास अपनी खुद की कंस्ट्रक्टेड बहुत सारी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है। एंड वन फाइन डे आई कम टू यू एंड आई टेल यू कि सर आपके पास तो कितनी सारी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं आप मुझे एक दे देते। तो अब अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले मिल चुका है और अब मैं जाकर ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो क्या ये ट्रांजैक्शन सेल ऑफ बिल्डिंग का है या ये ट्रांजैक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का है? जल्दी बताओ मुझे, ये ट्रांजैक्शन सेल ऑफ बिल्डिंग का है या ये ट्रांजैक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का है? ओ माय गॉड, यूट्यूब पे लाइव ही नहीं हो पा रहा है। अरे बाप रे, ये तो ध्यान ही नहीं दिया यार, यूट्यूब पे लाइव ही नहीं हुआ। ओहो, ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो गड़बड़ी हो गई। चलो अब
अब स्ट्रीम करके तो क्या ही फायदा, कुछ तो टेक्निकल एरर आया और मैंने स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दिया, उसके बाद मैं पढ़ाने लग गया। आप लोगों की चैट आ रही थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया यूट्यूब पर। अगर पहले दिख जाता तो मैं उसको करेक्ट कर लेता। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो आई विल एंड द स्ट्रीम। तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, और मैं इस वाली क्लास को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, मैं इस क्लास को यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। चलो एनीवे, सो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा था, कि अगर आप एक बिल्डर हो, ठीक है, आप एक बिल्डर हो, हाँ जी मैं अपलोड कर दूंगा बिल्कुल, श्रेया सिंह जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, लवजीत कह रहे हैं सर मैंने शुरू में बताया था। ओ आई एम सो सॉरी यार लवजीत, मैंने आपका मैसेज मिस कर दिया होगा। अंश कह रहे हैं बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सही बात है। ठीक है, एनीवे आओ, तो मैं कह रहा हूं आप एक बिल्डर हो, ठीक है, मैं आपसे आता हूं, मैं आपके पास आता हूं और आपसे कहता हूं यार मेरे लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दो। जब मैं आपसे कहता हूं आप मेरे लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दो, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हो, मैं आपको कंसिडरेशन दे देता हूं और उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो मैं, इसका मतलब है ना कि आपने मेरे कहे अनुसार बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक बिल्डर हो जिसमें आपके पास ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और फिर मैं आपसे आके कह रहा हूं कि मुझे आप अपनी कंस्ट्रक्टेड ये वाली बिल्डिंग दे दो, तब तो ये सिंपली सेल ऑफ बिल्डिंग है ना, विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले कंसिडरेशन मिल रही है तब तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं है, दैट्स नॉट इवन अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है ना, क्योंकि सेल ऑफ बिल्डिंग इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयरऑफ इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate. Except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate. अगर पूरी की पूरी consideration completion certificate के बाद मिल रही है तो इसका मतलब वो सेल है। ठीक है, completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. ठीक है, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन का मतलब भी वही हो जाता है कि आप कोई ना कोई वहां पर रह रहा है। तो आपके अगर कोई वहां पर ऑलरेडी रह चुका है और उसके बाद में जा रहा हूं कि मैं पैसे दे रहा हूं कि इस मकान में मुझे रहना है, तो मतलब उसने मेरे लिए कंस्ट्रक्ट नहीं किया, वो मकान बना हुआ है, मैं खरीद रहा हूं उसको। The term construction includes additions, alterations, replacements or remodeling of any existing civil structure. जाने दो, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। The expression competent authority means the government or any authority authorized to issue completion certificate under any law for the timing in force, and in case of non-requirement of such certificate from such authority from any of the following, namely architect, chartered engineer, licensed surveyor. ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, अगर मैं डोमिनोज को फोन करके कहता हूं कि डोमिनोज जी सुनिए, आपके पास जो पिज्जा है, जो आप मेक्सिकन ग्रीन वेव पिज्जा बनाते हैं, उस पे हैलापेनियोस मत डाला करिए प्लीज। तो डोमिनोज ने कहा रे हमारा हैलापेनियोस वाला बहुत चलता है। मैंने कहा हाँ यार, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ना हैलापेनियोस निकाल निकाल के खाता हूं। मैंने डोमिनोज से कहा अच्छा आप एक काम करिए, आप मुझे सिखा दीजिए कि आप ये पिज्जा कैसे बनाते हैं, फिर मैं अपनी दुकान खोलूंगा पिज्जा की, और मैं अपनी दुकान खोल के पिज्जा बना बना के बेचूंगा। मैं डोमिनोज से ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, मैं डोमिनोज से कह रहा हूं कि डोमिनोज भैया आप एक काम करिए, मैंने डोमिनोज से कहा डोमिनोज भैया आप एक काम करिए, आप वो कर दीजिए, मतलब आप ना मुझे बता दो कि पिज्जा कैसे बनता है। अब डोमिनोज क्या कर रहा है, अब डोमिनोज क्या कर रहा है, डोमिनोज मुझे बता रहा है कि पिज्जा कैसे बनता है, और अगर डोमिनोज मुझे बताएगा तो क्या वो फ्री में बता देगा? नहीं, मैं उसको कुछ पैसे वैसे दूंगा। तो डोमिनोज अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी अपना नो हाउ मेरे साथ शेयर कर रहा है, और उसके चक्कर में मैं उसको पैसे दे रहा हूं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो, डिजाइन करवा रहे हो, प्रोग्रामिंग करवा रहे हो, कस्टमाइज करवा रहे हो, एडाप्ट करवा रहे हो, अपग्रेड करवा रहे हो, एनहांसमेंट, कुछ भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। ठीक है, अगर आप इन तीन चीजों को लेकर अग्री कर रहे हो
तो आप एक सर्विस सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप एक सर्विस सप्लाई कर रहे हो, और इसके ऊपर हमारा मेजर डिस्कशन जाने वाला है, मेजर टाइम अभी इसके ऊपर जाएगा। अब नेक्स्ट जो आएगा इसके ऊपर हमारा डिस्कशन जाएगा, अच्छा खासा टाइम जाएगा, ठीक है, लेकिन सिंपल है, बहुत सिंपल है। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन मतलब मैं मान लूंगा कि मेरा एहसान है, मुझे आपके ऊपर कुछ एहसान करना है। क्या करना है? टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, या तो मैं ये कार्य नहीं करूंगा, ये मैंने मान लिया। आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझसे कहा निशान सर ये वाला काम मत करना, मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं आपके कहने की वजह से और आपके पैसे की वजह से ये काम नहीं कर रहा हूं, तो आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस। और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, समझ सपोज हम लोगों की क्लास में कोई बहुत ही बकरवाल करने वाला बच्चा आ जाता है, हम लोग की क्लास में कोई एक बहुत ही बकर करने वाला बच्चा आ जाता है, मैं उसको बार बार कह रहा हूं कि सुन मत कर बकरबाजी, मैं ब्लॉक कर दूंगा तेरे को, ब्लॉक कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। उसने मुझसे कहा सर देखो बकरबाजी तो मैं बंद करने नहीं वाला, आप सह लो इसको थोड़ा सा, और मैं आपको दे रहा हूं 5 करोड़ रुपए। मैंने कहा अरे यार तू मेरे घर आके बकरबाजी करे यार, तो क्या बात कर रहे, दे दे 5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अभी अभी हमारी क्लास में अगर कोई बच्चा आ जाता है और वो मुझसे कहता है सर मैं 5 करोड़ रुपए आपको दूंगा, लेकिन मैं लगातार बकरबाजी करता रहूंगा, आपको इसको सहना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसको सहना पड़ेगा। तो मैं अब ये सहने के लिए 5 करोड़ रुपए ले रहा हूं, तो ये भी क्या होगी कि मैं उसको एक सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, ये भी क्या हो जाएगा कि मैं उसको एक सर्विस सप्लाई कर रहा हूं। और नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। आपने मुझे पैसा दिया, आपने कहा सर ये वाला काम कर दो ना प्लीज, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, आपने कहा सर पैसे ले लो, मैंने कहा ओके कर लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, मैं आपके लिए एक सर्विस कर रहा हूं, कोई एक काम आप मुझसे कह रहे हो करने के लिए, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये भी एक सर्विस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ये एक सर्विस है। क्लॉज नंबर 5 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके बेसिस पे अच्छा खासा लंबा डिस्कशन है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस वेदर और नॉट स्पेसिफाइड पीरियड फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब मैं अगर अपने गुड्स को यूज करने का अधिकार दे रहा हूं तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको अपने गुड्स को यूज करने का अधिकार दे रहा हूं तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाती है। अब आओ क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 48। इज रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज? जाहिर सी बात है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Is renting of precincts of religious place a supply of goods or supply of services? जाहिर सी बात है supply of services। precincts मतलब क्या हो जाता है, जैसे जब आप मंदिर में जाते हो तो आप मंदिर के गेट के अंदर जब जाते हो तो देखते हो ना वहां पर कई बार प्रसाद की दुकानें लगी होती हैं, फूल मालाओं की दुकानें लगी होती हैं, किताबों की, श्री रामचरितमानस, भगवत गीता, ये सारी चीजें बिक रही होती हैं वहां पर। तो ये सारा क्या हो गया, मंदिर क्या करते हैं अपने जो भी प्रेमिसेस होता है उसको ये किराए पर दे देते हैं इन शॉप ओनर्स को, तो शॉप ओनर्स वहां पर अपनी दुकानें लगा लेते हैं, शॉप ओनर्स मंदिर वालों को किराया दे देते हैं। तो ये क्या है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। Is renting of property to an educational institution a supply of goods or a supply of services? जाहिर सी बात है supply of services, प्रॉपर्टी आप रेंट कर रहे हो ना, supply of services। Is permitting use of immovable property for placing vending and dispensing machines a supply of goods or supply of services? तो मैं अपनी immovable property का आपको अधिकार दे रहा हूं कि आप कर लो, आप इसमें अपनी मशीन वगैरह लगा लो, this is a supply of services। इधर देखो, state whether the following supplies would be treated as a supply of goods or a supply of services as per schedule 2. Renting of immovable property, supply of services. Goods forming part of business assets are transferred or disposed of by under the directions of a person carrying on the business so as no longer to form part of those assets. अगर वो अपने assets का part अब नहीं बचेगा तो ये supply of goods. Transfer of right in goods without the transfer of title in such goods, supply of services. Transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed, ये भी supply of goods, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा supply of goods। आगे देखो, determine whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per schedule 2. temporary transfer or permitting use or enjoyment of any intellectual property right, जाहिर सी बात है supply of services। any treatment or process which is applied to another person's goods, again जाहिर सी बात है supply of services। transfer of title in goods, this is a supply of goods। Rathi Builders has constructed individual residential units for agreed consideration of 1.2 crore rupees per unit. 90 lakh rupees per unit was received before issuance of completion certificate by the competent authority and the balance after completion. Is this a supply of goods or a supply of services? अब आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले 90 लाख रुपए मिल चुका है, बाकी बाद में। इज दिस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज? क्लियरली दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, परफेक्ट, क्लियरली दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वेरी गुड।
ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले भी मिल गई है। कंसिडरेशन जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले भी मिल गई है, इसलिए दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट। Mr. X, a promoter, sells a flat in his new building to Mr. Y. Date of completion certificate is 11th March. Part consideration is received on 10th March by Mr. X. Is this a supply of goods or a supply of services? बताओ, ये supply of goods है या ये supply of services है? सर्विसेज, ये भी क्लियरली सर्विसेज है। क्यों? क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला 11 तारीख को और थोड़ा सा कंसिडरेशन 10 तारीख को मिल चुका था। ठीक, नेक्स्ट। Pizza Bakers allows the use of its patented process to Domino's Pizza, bhai sahab, against a consideration of 15 crore. Is this a supply of goods or a supply of services? Pizza Bakers ने Domino's को अपनी intellectual property right दे दी है। Supply of goods है या services है? Services. Very nice. A company pays programmers to develop an in-house accounting software against a payment of 25 lakh rupees. In-house accounting software बनवाया जा रहा है। Is this a supply of goods or a supply of services? जाहिर सी बात है, अगेन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वेरी नाइस। केबल ऑपरेटर सखाराम, अब देखो, केबल ऑपरेटर सखाराम हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद केबल ऑपरेटर आत्माराम दैट Sakharam will not provide cable connections in the specified areas where Atmaram is providing the connections. Is this a supply of goods or a supply of services? तो सखाराम ने आत्माराम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। आत्माराम ने उसको कहा कि जहां जहां मैं केबल सप्लाई कर रहा हूं वहां वहां तुम केबल सप्लाई नहीं करोगे। अगर सखाराम इस बात को मान रहा है तो सखाराम इज अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। ठीक है, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कि हाँ ठीक है आत्माराम भाई, जहां तुम केबल सप्लाई करोगे वहां मैं सप्लाई नहीं करूंगा। तो अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। Mr. X, an employee of Z Limited, agrees not to work in the same industry for at least 2 years by signing a non-compete agreement and against a payment of 15 lakh rupees. Is this a supply of goods or a supply of services? Is this a supply of goods or a supply of services? तो ये भी आपका क्या हो जाता है? Agreeing to refrain from an act हो जाता है, तो इसलिए ये supply of services है। Next देखो, नेक्स्ट देखो, इसको काट दो आप, क्वेश्चन नंबर 60 को काट देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करेंगे इवेंचुअली। नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर लीविंग जॉब बिफोर अग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर लीविंग जॉब। इज दिस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज? इसको भी अभी जाने दो, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। 61 भी जाने दो। A machinery is given on hire by Mr. X to Mr. Y for 15 lakh rupees. This is a supply of goods or supply of services? ये तो supply of services ही हो जाता है, ये तो क्लियरली सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही हो जाता है। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक, अब आप लोग जरा यहां पर मजे की बात देखेंगे। ठीक है, ये जो पैरा 5E है, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, इससे रिलेटेड कई सारे लिटिगेशंस आए कि किसको बोला जाएगा कि यहां पर आप रिफ्रेन कर रहे हो, किसको बोला जाएगा यहां पर आप टॉलरेट कर रहे हो, किसको बोला जाएगा कि यहां पर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इसके लिए सरकार ने अच्छा खासा बड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस, कॉम्पनसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ। देखो, अच्छा खासा बड़ा सा है, ये लंबा चलेगा और इसमें काफी सारी चीजें विल मेक सेंस टू यू, बट कुछ चीजें विल नॉट मेक एनी सेंस टू अस। और हम लोगों को लगेगा यार अभी थोड़ी देर पहले तो इसी चीज को कह रहे थे कि इस वजह से ये ऐसा है, अब उसी वजह से कह रहे हो कि ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जितना समझ में आएगा बहुत ही अच्छी बात है, जितना नहीं समझ में आएगा वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसको याद करना है। ठीक है, और इस पूरे के पूरे का मैंने यहां पर समरी बनाकर आपको दी हुई है। ये जो है ना, agreeing to the obligation to refrain from an act, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act। अब यहां refrain from an act का क्या मतलब है, यहां पर tolerate an act or a situation का क्या मतलब है,
क्या क्या यहां पर इसके एग्जांपल्स हैं, कौन कौन लिक्विडेटेड डैमेजेस, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं, क्या क्या इसके केसेस हैं, ये सारी की सारी चीजें, कौन कौन सी चीजें सप्लाई नहीं मानी जाएंगी, कौन कौन सी चीजें सप्लाई मान ली जाएंगी, ठीक है। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, इसके एग्जांपल वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर दी हुई है, ठीक है। ये पूरी जो लिस्ट बनाकर दी हुई है, ये लिस्ट इसी क्लैरिफिकेशन से निकल कर आई है, ये लिस्ट इसी क्लैरिफिकेशन से निकल कर आई है। मैं आपको क्लैरिफिकेशन पढ़ाऊंगा, मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा। देखो, सिर्फ ये याद रखना कि कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं होगा, ये काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर आता है। हम लोगों को उसको पूरा आंसर उसको एक्सप्लेन करके लिखना होता है। एक्सप्लेन करके लिखने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि क्लैरिफिकेशन के अंदर क्या रीजनिंग दी हुई है। इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सरकार निकालेगी तभी तो आईसीएआई पूछेगा। सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल एग्जाम्स में, सीरियसली बता रहा हूं, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के टैक्स के एग्जाम में आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं होती है। कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो सरकार ने अभी तक इश्यू ना किया हो, राइट। सरकार ने अगर किसी एक चीज को बोला है कि ये चीज ये है, तो इंस्टीट्यूट आपसे ये नहीं कहेगा कि बताओ तुम अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा कि इंस्टीट्यूट सिमिलर केस एक दे देगा, ठीक है। एक सिमिलर केस देने के बाद बताएगा कि अब बताओ तुम अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपका काम क्या होगा? आपको देखना होगा, अच्छा ये केस है, अरे इससे रिलेटेड तो सेम क्लैरिफिकेशन आया हुआ है। फिर आप बताओगे अरे वो क्लैरिफिकेशन आया था, उसके हिसाब से ये लॉजिक है, उसके हिसाब से ये चीज यहां पर लिखी हुई है, तो इसलिए मेरा भी ओपिनियन यही है, इसलिए मेरा भी ओपिनियन यही है, ठीक है। तो सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल में टैक्स के एग्जाम से ना हम लोग बहुत डरते हैं। मैं भी बहुत डरता था जब मैं स्टूडेंट था, क्योंकि ऐसा डर का माहौल बनाकर रखते थे सब लोग कि अरे पता नहीं क्या आ जाएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा, केस लॉज आते हैं, केस लॉज आते हैं, केस लॉज आते हैं। कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल चीजें होती है। क्योंकि वो जो केस लॉज आते हैं, इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी से बनाकर नहीं देता है। जो ऑलरेडी केस लॉज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिपार्टमेंट में सारे एग्जाम, मतलब वो केसेस जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे इंस्टीट्यूट नाम चेंज करके कोई सेम सिचुएशन बनाकर दे देता है, और फिर आपसे पूछता है बताओ तुम्हारा ओपिनियन क्या है। तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, जो केस लॉ है वो समझ के, वो पढ़ के, वही लॉजिक तुमको देना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। जब आप सीए बन जाते हो, तब आपको अपने दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, तब आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। और उसमें भी मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। प्रैक्टिकलिटी में भी बहुत सारे केसेस आते हैं इस तरह से। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप लोग आर्टिकलशिप करोगे, तो वहां पर आप लोग देखोगे बहुत सारे इस टाइप के केसेस आएंगे। तो आपके बॉस आपको होमवर्क में भी यही देंगे कि जरा देखो इस टाइप का कोई केस कहीं आया हुआ है क्या, जरा देखो इस टाइप का कोई केस कहीं आया हुआ है क्या। फिर आप वो केस गूगल करते हो, और जब आप उस केस के फैक्ट्स बताते हो गूगल पे, तो गूगल ढूंढ ढांड के बताते हैं कि हाँ हाँ ये केस ऐसा आया हुआ था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने ये डिसीजन दिया था। फिर आपके जो सीए बॉस होंगे, वो उसी रिसर्च के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर के सामने जाकर बहस करेंगे कि देखिए ये केस आया हुआ है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, जो हम लोग कह रहे हैं वो सही है, और ये केस भी आया हुआ है, हम लोग जो कह रहे हैं उस चीज को ये केस प्रूव कर रहा है। अब अगर उसके बाद असेसिंग ऑफिसर सैटिस्फाइड नहीं होता है, तो फिर और केस चलता है, और फिर से जजमेंट आता है। लेकिन यूजुअली अगर केस किसी चीज का होता है, तो असेसिंग ऑफिसर सैटिस्फाई हो जाता है, थोड़ी बहुत घूस लेकर उसके बाद जाने देता है, ठीक है। और घूस नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक हर स्टेट में, हर स्टेट में, हर सिटी में चलती है। अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये है, ठीक है। कि इनकम टैक्स ऑफिसर वाला भी घूस लेगा, जीएसटी वाला भी घूस लेगा, और ये सारी चीजें चलती हैं यहां पर। एनीवे, कमिंग बैक टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में इट्स वेरी सिंपल। जो चीज क्लैरिफिकेशन में दी हुई है, आपको उस चीज के लिए वो वाला लॉजिक समझना है, वो वाला लॉजिक आपको याद करना है, क्योंकि वही लॉजिक आपको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आओ देखो यहां पर सर्कुलर नंबर 178 by 10 by 2022 जीएसटी डेटेड 3 अगस्त 2022, आज से 2 साल पहले आया था ये। Clarifies issues with respect to GST applicability on liquidated damages, compensation and penalty arising out of breach of contract or other provisions of law. देखो, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act has been specifically declared to be a supply of service as per para E of schedule 2 to the CGST Act 2017 if the same constitutes a supply within the meaning of the CGST Act, right? तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मैं मान रहा हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। दूसरा है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, मैं मान रहा हूं कि मैं तुम्हारी ये बर्ताव सह लूंगा।
तीसरा है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, मैं ये मान रहा हूं कि मैं तुम्हारे पैसे देने पर ये काम करने के लिए राजी हो जाऊंगा, करने के लिए राजी हो जाऊंगा। सुनो, agreeing to the obligation to refrain from an act, इसके एग्जाम्पल है, example of activities that would be covered by this part of the expression would include non compete agreements। तो यहां पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था नॉन कंपीट अग्रीमेंट वाला, नहीं कहां गया नॉन कंपीट अग्रीमेंट, कहीं तो था, ये रहा नॉन कंपीट अग्रीमेंट। ये देखो, केबल ऑपरेटर सखाराम, ये जो केबल ऑपरेटर सखाराम और आत्माराम वाला था, ये क्या था, ये दिस वाज अ नॉन कंपीट अग्रीमेंट। ठीक है, सखाराम मान गया था आत्माराम की बात कि चलो यार तुम यहां पर केबल प्रोवाइड कर लो, मैं मान ले रहा हूं कि मैं नहीं करूंगा यहां पर, तो दिस इज अ नॉन कंपीट अग्रीमेंट। तो यहां पर अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट है। सखाराम ने कहा कि ठीक है, आई रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग माय केबल सर्विसेज इन एरियाज वेयर योर केबल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। ठीक, तो देखो examples of activities that would be covered by this expression would include non-compete agreements where one party agrees not to compete with the other party in a product, service or geographical area against a consideration paid by the other party. दूसरा, another example of such activities would be a builder refraining from constructing more than a certain number of floors, even though permitted to do so by municipal authorities, against a compensation paid by neighboring housing project which wants to protect its sunlight, or an industrial unit refraining from manufacturing activity during certain hours against an agreed compensation paid by a neighboring school which wants to avoid noise during those hours. तो यहाँ पर टोटल 3 एग्जांपल्स दिए हैं इन्होंने। एक एग्जांपल तो ये हो गया नॉन कंपीट अग्रीमेंट वाला, इसके अंदर इन लोगों ने 2 एग्जांपल्स और दिए हैं। एक एग्जांपल ये है, सुनना बात को, कि सपोज मेरा मकान है और मेरे मकान के बगल में एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी हुए जा रही है। ठीक है, एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी हुए जा रही है। अब अगर कोई बड़ी सी बिल्डिंग मेरे मकान के जस्ट बगल में खड़ी हो जाएगी तो मेरे मकान पर उतनी धूप नहीं आ पाएगी जितनी धूप पहले आ रही थी। जाहिर सी बात है, मेरे मकान पर उतनी धूप नहीं आ पाएगी जितनी धूप पहले से आती थी। मैं गया बिल्डर के पास, मैंने बिल्डर से कहा कि यार आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे तो मेरे मकान पे तो धूप ही नहीं आएगी। तो बिल्डर बोलेगा कि साहब मैं क्या करूं, मैंने तो देखो बाकायदा परमिशन ली हुई है सरकार से और ये रहा मेरा परमिशन लेटर। ठीक है, अब आपको कोई एक समस्या है, आप जाओ सरकार के पास, जाओ केस करो, मैं क्या करूं, मैंने तो सरकार से परमिशन ली हुई है और मैं बाकायदा परमिशन के साथ बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इलीगल काम कर रहा हूं। मैंने कहा सर मैं आपके सामने प्रेम प्रस्ताव लेकर आया हूं, आप तो मुझसे लड़ाई पे उतर आए, आप कह रहे हो कोर्ट केस करा लो। मुझे नहीं कराना कोर्ट केस, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप इलीगल तरीके से बनवा रहे हो, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि माना आपको परमिशन मिल चुकी है, पर फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहां पर मेरे घर के बगल में लेट्स से 15 फ्लोर्स का मकान ना बनाओ, 10 फ्लोर्स का बना लो ना, आप 10 फ्लोर्स का बनवा लो, बस इतना सा कह रहा हूं मैं, आप कहां कोर्ट कचहरी के बारे में आ रहे हो। तो उसने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है यार, मैंने परमिशन ली है 15 माले की बिल्डिंग बनाने की, 15 माले की बिल्डिंग बनाने की परमिशन लेने के लिए मैंने पैसा दिया हुआ है। तो मैंने कहा अरे आप पैसे की चिंता मत करो, मैं आपको कुछ पैसा दे रहा हूं, लेकिन आप प्लीज मुझसे वादा करो कि आप 10 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग नहीं बनाओगे। ठीक है, आप 10 फ्लोर से ऊपर नहीं बनाओगे, मैं आपको पैसा दे देता हूं। अब यहां बिल्डर क्या कर रहा है, बिल्डर इज अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। यहां पर बिल्डर विल नॉट क्रिएट अनदर बिल्डिंग, अब वो 5 फ्लोर्स और नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पैसा दे दिया और मैंने उससे रिक्वेस्ट की और बिल्डर कह रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम कह रहे हो पैसा दे रहे हो तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? क्या ये वाला पॉइंट आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? फटाफट से बताओ, क्या ये वाला पॉइंट आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल तो ये हो गया। तीसरा एग्जांपल समझो। एक स्कूल है, स्कूल के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्कूल के बगल में कंस्ट्रक्शन चलता है, दिन भर मशीनें चलती हैं, ठाक 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 ठाक। स्कूल के प्रिंसिपल और सभी टीचर्स कंस्ट्रक्शन वाले के पास पहुंच गए कि मालिक हमारे स्कूल में ना तो एसी है, ना तो हमारे स्कूल में माइक्स है। ठीक है, और बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। बच्चे जब बहुत शोर मचा रहे हैं और बाहर आप शोर मचा रहे हो तो हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, हमारे गले सूख जा रहे हैं, हम चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा दे रहे हैं, फेफड़े बाहर निकल के आ जा रहे हैं, लेकिन
हमारी आवाज आखिरी की सीट में बैठे बच्चे तक पहुंचती नहीं है। और अगर वो अच्छा बच्चा होता है तो वो चुप रहता है, कहता है मुझे तो वैसे भी नहीं पढ़ने से मतलब। और अगर वो कोई खुराफाती बच्चा होता है, बार बार कहता रहता है सर प्लीज रिपीट, मैम प्लीज रिपीट, सर प्लीज रिपीट, मैम प्लीज रिपीट, आवाज नहीं आ रही मैम, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि आप सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यहां पर ना चलाएं। बच्चों की पढ़ाई में विघ्न पैदा हो रहा है। ठीक है, आप भले ही दूसरी शिफ्ट कर लें, रात की शिफ्ट कर लें, कुछ भी कर लें आप, और उसके लिए अगर कुछ एडिशनल कॉम्पनसेशन की जरूरत है तो वो हम आपको पे कर रहे हैं। उसके लिए अगर आपको कुछ एडिशनल कॉम्पनसेशन की जरूरत है तो वो हम आपको पे कर रहे हैं। तो यहां पर अब क्या हुआ, स्कूल ने जाकर मैन्युफैक्चरिंग वालों से कहा कि आप स्कूल आवर्स में अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को प्लीज रोक दीजिए। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करेंगे, दे विल अग्री टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। दे विल अग्री टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। ठीक है, ये 3 दिए हुए एग्जांपल्स यहां पर, ये मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, देखो। नॉन कंपीट एग्रीमेंट, पहला एग्जांपल। बिल्डर रिफ्रेन्स फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग टू प्रोटेक्ट सनलाइट टू नेबर्स, दूसरा एग्जांपल। तीसरा, कॉन्ट्रैक्टर रिफ्रेन्स फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। अब आपके पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, कोई क्वेश्चन इस टाइप से बन जाएगा कि XYZ बिल्डर्स आर कंस्ट्रक्टिंग अ 15 फ्लोर बिल्डिंग इन 15 फ्लोर बिल्डिंग, all the neighboring houses request them to not create a building till 15 floors and they pay the consideration, और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ 10 फ्लोर्स तक ही बनाओ। Is this a supply of service? आपका आंसर होगा yes, this is a supply of service। क्यों this is a supply of service? फिर आप बोलोगे as per para 5E of schedule 2 to the CGST Act 2017, any activity agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act is considered as a supply of service. This is a classic case of agreeing to the obligation to refrain from an act and hence this will be treated as a supply of services। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा तो जीएसटी भी लगेगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को यहां पर दिए हुए हैं। ठीक, नाउ अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, मैं आपको ये एग्जांपल्स तक करा दूंगा, उसके बाद ये जो केसेस हैं उन केसेस का इसके बारे में हम लोग फिर कल बात करेंगे। ठीक है, अच्छा नहीं, इन एग्जांपल्स से पीछे, हाँ ये है ना ट्रांजैक्शंस, ये कुछ कई सारे ट्रांजैक्शंस हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कल से। तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखो, या चलो अब ये बाकी एग्जांपल वगैरह भी मैं आपको कल ही बता दूंगा, क्योंकि कल मुझे एक बार ये दोबारा तो पूरा कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे आपको ये एक बार करवाना ही पड़ेगा, ये वाले एग्जांपल भी मैं दोबारा बताऊंगा ही बताऊंगा, जिससे एक फ्लो बन जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।